Hello everyone, good morning. Welcome in the revision of real number. So I'm keeping no chance for excuses. I'm solving each and every question basically to see that you all understand each and every sum properly. So the number system that is real number I'll be taking in two sessions. In today's session I will be solving almost 20 questions and maybe in the next session we will be solving the remaining questions, right? So let us begin with it. For any doubt, see, I'm going to do it very fast. We are not going to waste so much of time in this. Purposely, I gave you time for you to solve each and every question so that you will get a confidence that yes, I can do it. At the same time, at the same time, I want you to search the difficulties that what you face while solving all this question. Because the same thing happens at the examination. Suddenly you get a question and you face difficulty there. And that I want you to face. That's the reason I suddenly put this worksheet in front of you and you have to solve all the questions. Okay, so this is what the maths troubles you during the examination, and that we're going to reduce by doing such a practice. Okay, anyway, let's not waste time. Let's continue quickly because I have to solve almost 20 questions in this session. फटाफट solve करते हैं. Explain why this particular number is composite. Quite big number, quite large number. So do you really think okay, we have to factorize it to check whether it is composite or no? I have to just explain. So the unit digit is 5. Unit digit is 5. So this number, that x or whatever the number is, it is divisible by 5. Therefore, of course, you know the divisibility test of 5. The unit place is 5, then it will be divisible by 5. So as it is divisible by 5, there is some number which is that particular number is divisible by. So it is a composite number. Therefore, it is composite number directly, you can say. What is second question? You get first one. Second question. फटाफट करते हैं. What is the smallest HCF of smallest composite number? Smallest composite number is not 1. 1 is neither composite nor prime, not 2, not 3, not 4. Yes, 4. 4 is the smallest composite number. Okay, and smallest prime number is 2. 2 is the smallest prime number. So HCF of these two numbers, HCF of 2, 4. So it is I think 2. ठीक है. HCF कैसे निकालते हैं? आपको वो डेफिनेशंस पता होंगे. You want me to revise everything again? To reduce that itself, I have asked you to solve it one day before, so that I would not I don't have to unnecessarily revise all those concepts, all those basic concepts. लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको 100% समझा देता हूँ जो आपको सिलेबस के लिए भी है एंड भूल भी जाएंगे आप लोग. वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं. बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ क्या होता है? लोएस्ट पावर, लीस्ट पावर और लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर. एंड एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर और ईच फैक्टर इन्वॉल्व. ठीक है, ये है. ये दोनों डेफिनेशन नॉर्मली हम लोग भूल जाते हैं, याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं. ठीक है. एनीवे, आपके सिलेबस से यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीटली बीन कैंसल्ड, बट डोंट नो वेदर द स्कूल इज गोइंग टू कैंसिल फ्रॉम योर एग्जाम और नॉट. सो कंसिडरिंग दैट इट इज़ देयर, हम लोग डिवीजन कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट टाइम से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कैंसिल करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बीन टॉट टू यू. सो वी कैन नॉट डिसाइड कि स्कूल लेगा या नहीं लेगा. ठीक है. अगर आपको 100% गारंटी है कि स्कूल इज़ नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व ईडीएल, तो देन यू कैन स्टॉप रिवाइजिंग दैट पार्ट. ओके, दोज क्वेश्चन यू कैन ओमिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिविजन. ओके, कैलकुलेट. थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ दिस वन. तो आपको मैं समझाऊंगा. आई एक्सप्लेन यू विच वन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, डोंट वरी. बट अभी थर्ड क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा का नहीं है, फैक्टराइजेशन का है. एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स is going to be least power, lowest power of all the common factors. Common factor 3 है, कॉमन फैक्टर 5 है. 3 का लोएस्ट फैक्टर इन्वॉल्व इज 2 एंड 5 का 1. ये आ गया आपका एचसीएफ का काम खत्म, फिनिश्ड. देन फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये थर्ड था. फोर्थ क्वेश्चन देखो, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12, ए इंटू बी इज दिस वन. तो यू नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स. यूज दिस वन टू गेट द आंसर. एलसीएम आपको फाइंड करना है, एचसीएफ आपको दिया गया है. तो ए इंटू बी, a into b is 1800 divided by 12 as HCF gives you LCM. Finished.
दैट्स इट, आंसर रेडी फॉर यू। तो इट्स ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स इफ के इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो वेरी क्लियरली सीन के इज इक्वल टू के, 2k इज इक्वल टू 2 इंटू के, 3k इज इक्वल टू 3 इंटू के, 4k is equals to something like 2 into or 2 square into k, right, and 5k is equals to 5 into k are the factorization or factors of all those numbers. Then I need to find out HCF. HCF is least power of common factor. तो common factor तो k है इसमें, k का common power क्या है 1 है, तो आंसर इज k is the factor। तो orally भी आ सकता है, easy था, बहुत easy था, isn't it? आगे बढ़ते हैं, complete the following factor tree। factor tree को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो फैक्टर ट्री कैसे होता है, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट स्क्रीन राइट आई गो फॉर इट। फैक्टर ट्री ऐसे होता है, देखो दिस इंटू दिस इज हियर, ठीक है, 5 इंटू 371 इज हियर, 1855 इंटू 3 दिस इंटू दिस इज हियर, एंड y इंटू 2 इज नथिंग बट ओवर हियर, ठीक है। तो z कैसे फाइंड करेंगे, दिस इंटू दिस इज z, तो 7z, तो 7 इसको डिवाइड करेंगे तो z मिल जाएगा, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21, तो ये z इज इक्वल टू 53 आ गया। 53 इंटू दिस इज दिस वन, इट्स फॉर श्योर, आई डोंट हैव टू वर्क ऑन इट। 53 नहीं, सॉरी, 371 into 5 is going to give you 1855, so forget about it, but yes, 1855 into 3 is going to give you y, and this into y into this is going to give you x. You can find out the answer all by yourself, so I'll just discard it and I hope you all have understood it. आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं द नेक्स्ट टास्क। तो HCF ऑफ 90 HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने बोला ये तो यूक्लिड का नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो 90 गिव्स यू फैक्टर्स एज 245 3 1 3 5 15 3 5 and 5 1, so 90 is 2 into 3 square into 5, ठीक है, and 144 is 2 raised to 4 into 3, I think 3 square, yes, 3 square, right. So now we can just a minute, अगेन चला गया यार, ये क्या हो जाता है इसको पता नहीं, आ गया। सो नाउ वी हैव LCM और HCF फर्स्ट। कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 3 है, 2 का लिस्ट पावर 1 है, 3 का स्क्वायर, एंड LCM ऑल द फैक्टर्स, तो 2 है, 3 है, 5 है, 2 का हैश पावर 4, 3 का हैश पावर 2 एंड 5 का हैश पावर 1, दिस इज LCM, दिस इज HCF। Just I thought कि you are forgotten this, I am just taking it, nothing else. Using EDL algorithm, find HCF of 240 and 228. Division algorithm, I hope you remember. Answer must be 2 for this. Very sure. Looking at the number itself, I will understand it. पता नहीं, but फिर भी देखते हैं। तो करना क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आपको चाहिए तो करो, नहीं तो मत करो, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सबसे बड़ा नंबर दो 240 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो इंटू 1 प्लस जो भी आता है, मुझे लगता है 12 आएगा, प्लस 12। अभी क्या करना है, जो रिमाइंडर आया उससे इसको डिवाइड करना है, मतलब 2 to 8 इज इक्वल टू 12 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर, तो 12 1 12 9 एंड 0, तो जो 0 देगा उस टाइम का द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर HCF, तो HCF इज 12, तो इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो HCF ऑफ इजी था 240 एंड 228 इज इक्वल टू 12, फिनिश्ड, द आंसर इज दैट, ठीक है ना। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। तो कौन सा क्वेश्चन किया हमने, 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, गिवन दैट HCF इज गिवन LCM यू हैव टू फाइंड आउट। थोड़ा सा वियर्ड नंबर है, कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू n to b विल गिव यू द आंसर, इट्स नॉट अ बिग डील। एक्सप्लेन वेदर दिस इज कॉम्पोजिट और नो, तो 3 into 12
इंटू 101 प्लस 4, इन सब में से कुछ कॉमन निकलता है क्या देखो, तो कॉमन इज 4, दैट विल गिव अस वेदर इट इज कंपोजिट और नो. तो 3 इंटू 3 4s, 4 3 are 12, 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 1. So isn't it that particular number is going to be product of these two numbers? So that's why it is a composite. Therefore, it is a composite number. Yes, it is a composite number. Similarly, 11th one also you can try. I think in the first experiment this is a separate number. देखो ये एक अलग नंबर है पहला वाला एंड दूसरा वाला अलग नंबर. पहले वाले में से 11 कॉमन निकलेगा एंड इट इज गोइंग टू बी कंपोजिट नंबर, एंड सेकंड वाले में से आई थिंक 3 कॉमन निकलेगा एंड इट इज गोइंग टू बी अगेन अ कंपोजिट नंबर. दैट्स इट, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. आगे बढ़ते. 12th वन, find the smallest natural number by which this should be multiplied so that the square root is a rational number. That means it should be a perfect square. तो 1 2 0 को फैक्टराइज करो. 2 6 0 0, 2 3 0 0, 2 1 2 5 0, 2 7 75, 3 2 6, 3 5 15, right? And 5 and 5. So 1 2 0 0 is equals to, in fact, in case if I want a square, perfect square I want, so I am taking in this way, into 3 into 5 square if I check. So by what number if I have to multiply so that this is going to become a perfect square? ये 8th standard वाला क्वेश्चन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 3 कोई स्क्वायर नहीं है. दैट्स इट. तो ये ईजी है, थोड़ा सा उस पार्ट से यहाँ पे आ गया. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लेमा का क्वेश्चन है, आपको चाहिए तो आप लोग खुद से कर सकते हो. शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस दिस और दिस इवन पॉजिटिव इंटीजर. सो इसमें से कॉमन निकल जाता है, आपको पता है. लेट ऐसे करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड देन वी हैव b इज इक्वल्स टू 6. सो वी गेट द नंबर्स अकॉर्डिंगली एंड आर एंड आउट. यू कैन फाइंड आउट दैट, यू कैन यूज़ दैट, क्योंकि ये वैसे भी सिलेबस से कैंसिल हो चुका है लेकिन हमने किया हुआ है, तो एक बार खुद से रिवाइज करो एंड फिर करो. अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है ऐसे वाले फॉर्मेट में तो मुझे बताऊँ, इसके लिए मैं अलग से वीडियो पुट करता हूँ, नो प्रॉब्लम. तो ये भी वही फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, ईडीएल वाला है, ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो चुका है, सो आई डोंट हैव टू वरी अननेसेसरी फॉर दैट. स्टिल आपके स्कूल में अगर होने वाला है तो मुझे बता दो, आई टेक इट. Check whether this 15 raised to n can end with digit 0 for any number. It won't end with 0. तो let हमें करना होता है, let 15 raised to n ends with 0. Therefore 15 raised to n is equals to 10 raised to 10 into something, 10x हम लोग कंसिडर करते हैं. तो 15 is 5 raised to 3, 5 into 3 raised to n is equals to 5 into 2 into x, ऐसे हो जाएगा, राइट. तो इट्स वेरी क्लियर, 5 रेस टू एन हो जाएगा, ये 3 रेस टू एन हो जाएगा, ये 5 रेस टू 1 इंटू 2 रेस टू 1 इंटू समथिंग एज एक्स. तो ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स एफ टी ए. व्हाट इज़ एफ टी ए? कि ये यूनिक होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो वो यूनिक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए. तो ये यूनिकनेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे. आई होप यू अंडरस्टैंड. 5 है, 5 को n है तो यहाँ पे 1 है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पे देखो 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं. 3 चलो x है ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन 2 तो है ही नहीं इसमें, तो इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग एफ टी ए. देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद 0. आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर इट कैन एंड विद 0. फिनिश्ड, दैट्स इट. सो सिंपल है ना. आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर, दिस मीटर 6. अच्छा, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब 8 टोटल अगर देखा जाए तो 850 सेंटीमीटर है, 625 सेंटीमीटर है एंड 475 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर डायमेंशन. तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, एच सी एफ फाइंड करना पड़ेगा. ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन हार्डली आएंगे बट फिर भी आने के चांसेस है, क्योंकि देखो एच सी एफ हम लोग 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू फाइंड दिस एच सी एफ यूजिंग ई डी एल ओनली. ठीक है, तो ई डी एल से फाइंड करो. पहले 2 नंबर्स लो, कोई भी 2 नंबर्स लो, उसका एच सी एफ फाइंड करो, उसका एच सी एफ फाइंड द रिमेनिंग नंबर का फिर से एच सी एफ फाइंड करो. दैट विल गिव यू एच सी एफ ऑफ 3 नंबर्स. आई होप यू रिमेंबर दिस. दैट्स इट. तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं. कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर एच सी एफ एंड 175 एज देयर एल सी एम. तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि एल सी एम इज मल्टीपल और एच सी एफ इज फैक्टर ऑफ एल सी एम. तो इसको इरेज करते हैं. एच सी एफ शुड बी, एच सी एफ इज अ फैक्टर ऑफ एल सी एम नॉर्मली. तो लेट अस चेक, but here
इज 15 a factor of 175? देखते हैं 175 का 15 फैक्टर है क्या? 15 1 15, 2 लेफ्ट 25, नहीं है, नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया. हियर 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM और 175, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो रीज़न ये है इफ़ यू वांट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टू पॉजिटिव इंटीजर्स p इनका रिटर्न. अच्छा p इज गिवन a स्क्वायर b क्यूब, q इज गिवन a क्यूब b. ये बहुत बार MCQ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में भी ये आता ही है. तो हमें LCM एंड HCF फाइंड करना है. LCM कितना आएगा? LCM इज ऑल फैक्टर a एंड b है, सबका हाइस्ट 3 3. HCF क्या आएगा? और कॉमन फैक्टर a एंड b है, सबका लोएस्ट 2 1. अभी PQ का प्रोडक्ट आएगा a⁵5 इंटू b⁴, एंड LCM इंटू HCF आएगा a⁵5 इंटू b⁴. उल्टा हो गया, चलो a⁵5 इंटू b⁴. ठीक है, काम ख़त्म, इक्वल है, हो गया प्रूफ. ठीक है, ओके. तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. चलो 19 क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन. डिविजिबल बाय दिस नंबर्स मतलब फाइंड क्या करना है? 18, 24 एंड 36 का LCM फाइंड करो. उस LCM से, यू रिमेंबर, LCM से 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करो. जो भी रिमाइंडर आएगा उससे इसे सब्ट्रैक्ट करो. आई होप यू रिमेंबर दिस. ओके, तो वो रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आंसर आएगा वो शुड बी डिविजिबल बाय LCM एंड दैट इज नथिंग बट डिविजिबल बाय ऑल दिस 3 नंबर्स एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. ठीक है, तो दैट्स इट, डन. यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर देते हैं. 20th क्वेश्चन HCF बाय EDL है. अगर आपको चाहिए तो फाइंड करो, बहुत बड़ा नंबर है. इसको हमने वर्कबुक में किया हुआ है. 31 आंसर है. बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर मुझे सेंड किया था एज आई रिमेंबर टिल दिस टाइम. बहुत स्ट्रगल किया था आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कोई बात नहीं, यहाँ तक रुक जाते हैं. कल से हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर देंगे. तो ठीक है, जितना हो सके मैं उतना रिवाइज करने की कोशिश करूँगा. सारे क्वेश्चंस आपके मैं खुद सॉल्व करके दिखाऊँगा, लेकिन मैं खुद करूँगा तो मुझे आएगा और एक बार, और आप करेंगे कोई भी क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएगा. सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन व्हेन आई सॉल्व इट एंड व्हेन यू प्रैक्टिस इट. तो बेसिकली मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. देख के मैथ्स कभी नहीं आएगा. तो वीडियो देखो जस्ट टू नो वेदर यू हैव डन इट करेक्ट और नॉट, जस्ट टू फाइंड आउट कि 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं आए वो कैसे करने हैं. वीडियो इसलिए नहीं देखना है कि हर एक क्वेश्चन कैसे करना है एंड देन जस्ट कीप इट असाइड. ठीक है, रिविजन मैं करवा रहा हूँ बिकॉज यू आर नॉट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी और यू आर नॉट इवन वाइल टीचिंग दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ मी. सो ईच एंड एवरी आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट और मे बी सॉल्विंग इट पार्शली. ठीक है, तो प्लीज़ डोंट मेक मिसयूज दिस वीडियो. सॉल्व इट, डोंट जस्ट वॉच इट. ओके, ये कुछ हिस्ट्री नहीं है, स्टोरी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये एक मैथमेटिक्स है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. आई वॉन्ट टू वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम. कंप्लीट द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन एज वेल एंड देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इटसेल्फ. तो ठीक है, थैंक यू सो मच. बाय बाय, सी यू.